Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, before to go ahead, I want to share one thing from my side, that is I am not physically present with you in the school because of COVID-19 pandemic, but believe me student, I will try my best to resolve your all queries and doubts through this online classes. Okay? Student, we already discussed about the employability skill in our last session. Okay, in which we discussed communication skill, self management skill, and information and communication technology. Okay, this is comes in the employability skill. Okay, so here we are going to cover the next skill, which is called vocational skill. Okay, in this topic we are going to introduce first digital documentation. ओके, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन या फिर दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं हम एमएस वर्ड, जो कि आपके सिलेबस में है. ओके, तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड इन द कंप्यूटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हियर this is my computer screen. Okay, this is a blank computer screen, nothing is there. So you have to just go to the start button and find out the MS Office package. Okay, so here you can see MS Office package, expand all the MS Office package, and in this MS Office package you can see number of application is there. So you have to choose what? Microsoft Word 2007. Okay, just click it and it will open here. Okay, so this is the overview of MS Word. Okay, now this is a document software. Okay, so companies use this software to making their documents. Okay, so here you can see in the top of this document, it is written document 1. Okay, and where it is written? It is written in title bar. This area is known as title bar. Okay, in the bottom this area known as status bar. Okay, this area is known as status bar. So top one is title bar and the bottom one is status bar. Okay, on the right side you can see minimize button, maximize or restore button, and then close button. Okay student, in the left side you can see this is a quick access toolbar. Okay, and here you can see this is the office button. Okay, so this is about the pages. Okay, now here you can see home, insert, page layout, reference, mailing. What are these? These are the tabs. Okay, these are the tabs. So home, insert, page layout, reference, mailing, review, view are the tabs. In each tab you can see the ribbons. This is called a ribbon. ये सारे क्या है हमारे ribbons है, ठीक है ना. In each tab having ribbon. So here in ribbon this is a clipboard group. Here this is a font group. This is a paragraph group. This is a style group. Similarly in insert tab, here in this ribbon you can see the page group, table group, illustration group, link group, header, footer, text, symbols, and so on. Similarly, page layout tab, you can see themes, page setup, page background, paragraph, etc. Okay, so this is about the layout, student. Okay, so here I am going to show you another thing of this window. Okay, so here go to the home tab. Go to the home tab and here you can see. Okay, now in the left hand side in the bottom you can see there page number 1 and page number 1. Because why so? Because there's only one page in this document. There's only one page in this document. Okay, if I want to insert another page, you can go to the insert and click on blank page. Okay, click on blank page. Now you can see here, now there's a 2 page and I am in page number 1. Okay, how many pages are there in document? 2 pages. Okay, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे insert किया blank page,
तो इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हो गए? 2 पेज हो गए। और अभी हम किस पेज पर हैं? 1 पेज पर है। अगर आपको दूसरे पेज पे जाना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल सा दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो नाउ यू आर इन पेज नंबर 2। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक है ना? ठीक है, पेज नंबर 2 ऑफ 2। तो ये दूसरा पेज है इन पूरे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या देखने जा रहे हैं? अब यहाँ होम टैब हमारे पास है। होम टैब में हमें क्या दिखता है? फॉर्मेट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और नीचे हमें देखने को मिलेगा क्या? वर्ड 1। यहाँ पे वर्ड 1 क्यों लिखा है? बिकॉज देयर इज अ स्पेस, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर। तो नाउ अब स्पेस रिमूव किया हमने, यहाँ पे कितना 0 दिखा रहा है। क्लियर ना? ये हमारा क्या है? एरर चेकिंग, ठीक है। ये हमारा क्या करता है? एरर चेक करता है, ग्रामेटिकल और सिंटैक्टिकल, ठीक। इसी के बाद हमने यहाँ पे राइट साइड पे देखे, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? व्यूज है आपको। ये प्रिंट लेआउट व्यू है, ये हमारा फुल स्क्रीन व्यू है, ये वेब लेआउट है, इसके बाद आउटलाइन है एंड देन ड्राफ्ट है। ये डिफरेंट व्यूज है जो कि हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जूम सेक्शन मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें होम टैब देखना है। ओके स्टूडेंट, तो होम टैब से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपने फाइल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? हम गए यहाँ ऑफिस बटन पे, हमने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट जो अभी हमने इसके पहले बनाए थे, ठीक है, वो यहाँ पे सब दिख रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं? हमने क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है, हमें सेव करना है, हमें सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन नहीं होता, सिर्फ खाली क्लोज बटन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लोकेशन कहाँ पे लिखेगा? बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट पे। माय डॉक्यूमेंट में ही आप अपने सबसे पहले जो डिफॉल्ट आपका स्पेस होता है, जो डिफॉल्ट आपका एरिया आएगा, स्टोरेज एरिया आएगा, वो आएगा माय डॉक्यूमेंट। वहां पे आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही अपने फाइल को सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले से हमारा सैंपल डेटा के नाम से एक फाइल हमारा सेव है। हम क्या करेंगे? तो कोई दूसरा फाइल बनाते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया टेस्ट डेटा, हमने यहाँ पे नाम पे लिखा टेस्ट डेटा। अब उसके बाद क्या कर देंगे? यहाँ पे देखो सेव एज अ टाइप, ये टाइप क्या किस टाइप का है? वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे आप फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में आपके डेटा को या फाइल को सेव कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किया हमने? इसको हमने सेव किया। अभी हमारा डेटा कहाँ पे जाके सेव हो रहा है? डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव हो रहा है, यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? टेस्ट डेटा लिख के आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं और वापस से इस फाइल को ओपन करते हैं। ऐसे क्लोज किया इसको। अब देखिए हमारे पहले वाले स्क्रीन पे आ गए हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया था तो हम डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं। डॉक्यूमेंट ये फोल्डर हमारे पास है और इसी के अंदर हमारे पे क्या है? टेस्ट डेटा है। टेस्ट डेटा को डबल क्लिक किया, ये हमारा डेटा ओपन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये डेटा हमारा ओपन हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर रिसेंट पे जाएंगे तो देखेंगे हमारा टेस्ट डेटा भी यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर? नाउ अब इसके बाद क्या करते हैं? अब चलते हैं, हम सीखते हैं कैसे हम होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट प्रिंटर को यूज करेंगे। चलिए एक सिंपल सा हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस इज माय फर्स्ट एमएस वर्ड प्रोजेक्ट। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा, दिस इज माय फर्स्ट एमएस वर्ड प्रोजेक्ट। अब क्या किया हमने? उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया? हमने कट किया। जैसे कट किया तो क्या हुआ? ये जो लाइन हमें दिख रही थी वो चली गई यहाँ से, इसका मतलब इट्स गॉन नाउ। बट ये कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव है। अब यू हैव टू जस्ट पेस्ट इट, यू कैन पेस्ट इट, ओके। दिस इज वे यू कैन पेस्ट मेनी टाइम्स। एक बार कॉपी करने के बाद, कट करने के बाद आप कितनी भी बार उसको पेस्ट कर सकते हैं, या कॉपी और कट करने के बाद कितनी बार भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कट। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं इसको हटाते हैं, सिर्फ एक लाइन रखते हैं। अब यहाँ से हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी और कट में क्या डिफरेंस देखिएगा। हमने क्या किया? अपने स्टेटमेंट को क्या किया? कॉपी किया, सिलेक्ट किया एंड देन कॉपी। कॉपी में क्या हुआ? हमारा स्टेटमेंट यहीं पे लिखा है, कहीं गया नहीं, इट इज नॉट गॉन। देन अभी हमने क्या किया? पेस्ट किया, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है ना। कितनी बार भी हम कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास बहुत सारे लाइन आ गए हैं। अब हमारे पास हमको क्या सीखना है? फॉर्मेट प्रिंटर देखना है। फॉर्मेट प्रिंटर हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर करता है क्या, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमने पहली लाइन क्या किया? सेलेक्ट किया। करने के बाद हम क्या गए? हम बोल्ड पे हमने क्लिक किया, बोल्ड हो गया। इटैलिक पे क्लिक किया, ये हमारे टूल्स हैं, और अंडरलाइन पे क्लिक किया।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया, यहाँ पे 11 की जगह हमने क्या किया, हमने 18 कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सब फॉन्ट का कलर टेक्स्ट कलर में चेंज किया तो रेड हो गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की इस पहले वाले अपने टेक्स्ट पर। अब मान लेते हैं हमारा हमने फॉर्मेटिंग करने के बाद हमें कुछ अर्जेंट काम आया और हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। जब क्लोज करेंगे क्या पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू द टेस्ट डेटा, जो अभी ना चेंजेस किए हैं आपने उसको वापस सेव कर जाते हैं, तो आपने बोला यस। अगर आप यस करेंगे तो सेव हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं सेव होगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिंग आपकी सेव नहीं होगा, डेटा आपका जैसे पहला था वैसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे कहा नहीं हमको सेव करना, हमने सेव कर दिया और ये हमारा विंडो क्लोज हो जाएगा। फिर अब इस विंडो को ओपन करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पर हैं, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारा डेटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखिए हमने सेव किया था तो ये हमारी लाइन पहले से ऐसे ही है। अब चाहते हैं हम कि जो भी फॉर्मेटिंग पहले वाली लाइन को अप्लाई हुई है वो हमारे बाकी भी लाइन को अप्लाई हो जाए। कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे हमारे पास ब्रश बन के आ गया। अब जहां जिस लाइन पे हम ब्रश करेंगे वो हमारा फॉर्मेट पेंटर हो गया। ठीक है, वापस से देखिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, हम चाहते हैं कि इस लाइन को हो, इस वाली लाइन को हो जाए। ठीक है, इस पे किया, ठीक, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों लाइन पे अलग फॉर्मेट हो, चलिए इसको अलग फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको इस बार इसका फॉर्मेट की जगह हमने इसका ये जो फॉन्ट फैमिली हमने इसको चेंज कर दिया, हमने इसको ये कर दिया। ठीक है, कलर्स में हमने इसको ग्रीन कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, चलिए हमने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इसका स्टाइल जो है इटैलिक कर देते हैं इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि जो स्टाइल और फॉर्मेटिंग इस लाइन को हुई है वही फॉर्मेटिंग हमारे इस लाइन को भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन वापस से आके देखिए प्लस का निशान बन गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ओपन इसको रख देंगे। सिमिलरली यहाँ वापस से जाते हैं फॉर्मेट पे और इस बार हमने इसको वापस से शुरू कर दिया। तो देखो स्टूडेंट, हमने कैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो हमने कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन और फॉर्मेट पेंटर को हमने देखा बेटा। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद इट इज आस्किंग व्हाट डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। कितनी बार भी आप इसमें एडिट करेंगे, डॉक्यूमेंट में एडिट करेंगे और क्लोज करेंगे, आपसे बार बार आपसे पूछेगा। आप चाहते हैं ये ना पूछे, क्या करना पड़ेगा आपको, तुरंत यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस बार यहाँ पर क्या रखा है, सेव। अब ये एरिया क्विक एक्सेस बार क्यों कहलाता है, बिकॉज अब अगर आपको सेव करना होता तो आपको ऑप्शन बटन में क्लिक करना होता, फिर इसके अंदर जाना पड़ता यहाँ पर सेव करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सेव ऑप्शन आपको यहीं पे आ गया। ठीक है, इसलिए इसको क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। देखिए इसमें चीजें और अब ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू है, स्पेलिंग ग्रामर है, अंडू रीडू तो ऐड ही है। ठीक है, ओपन है ईमेल, चलो हमने ईमेल ऐड कर लिया। इसके अलावा अगर हमने कुछ और है ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहीं से हम डायरेक्टली इसी के यहीं से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चीजों को। तो ये हमारा क्विक एक्सेस बार, इसको रिमूव करना है, यहाँ से वापस से जाइए, अनचेक कर दीजिए, जैसे कि अनचेक इस पे किया और उसके बाद हमने स्पेलिंग ग्रामर पे किया, सेव पे रहने देते हैं। ठीक है, जैसा था पहले वैसा हमारा हो गया। ओके, आई रिपीट दिस थिंग अगेन हियर, दोज हु आर सीइंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम will aware about it. Okay, so this is the title bar, this is our status bar. Okay, now on the right side you can see the minimize button, the maximize button, restore button and close button. In the left side you can say quick access toolbar. Okay, here you can see the office button. In the office button you will get a different type of what tool for different purposes. Okay, here you can see different kind of tools. Now here in this document, in the last lecture we discussed about what is document and what is MS Word. So beta, MS Word is a software which is especially designed for offices. Okay, especially designed for documentation, means the entire company where they need for preparing for documentation they use MS Word. Okay, now here in this documentation or in this file there's only one page. Okay, you can see this page here. Okay, this page 1 of 1 and I'm written nothing here, that's why there is no words. Okay, so let's see, understand the interface of this office document. Okay, so here home, insert, page layout,
reference, mailing, review, view are the tabs. We called its tabs, and inside the tabs, this is called a ribbon. The entire thing here you can see, this is called a ribbon. Each ribbon having a different group. This is a clipboard group, this is a font group, this is a paragraph group, this is a style group, and so on. Similarly, in the insert tab, you can see this is a page group, table group, illustration group, link group, header, footer, text, and symbols. Similarly, page layout, you can see themes group, page setup group, page background group, paragraph group, and arrange group. So here you in the examination, the examiner can ask a question where the watermark tool available in the Word document. Okay, so you have to give answer in the page layout. The watermark tab comes in page background option. Okay, so so many questions will raise here. So you have to identify the interface first. Okay, because the query comes here from. Okay, now home, insert, page layout, you have to understand. Okay, you have to understand the entire tool which comes in the specific tab. In the home tab, these tool are comes. Okay, now insert tab, again the different tools come here, right? Page layout also. So you have to make understand, because it will come, maybe it will come in your examination. Okay, so don't worry student, I will explain each and every tool very carefully to all of you. Okay, so in the last lecture we discussed cut, copy, paste, format painter. Okay, and here I am going to discuss the font group. Okay, font group. So first of all we have to write here. So suppose I want to write some text here, so I need to type it here. Suppose this is my first or second. When we write second, so this is a spelling mistake. Automatically the zigzag line comes below the word. It display here, it is an error, and this red line, zigzag line, specifies the syntax error. Okay, there is no grammatical error, but the sentence error. Sorry, sentence name is syntax. Means suppose here or spelling mistake. There is a spelling mistake in this word. So you have to write second. Automatically the error will gone. Okay, this is my second topic of MS Word. Suppose I am writing like this. So this is very small font. This font is very small here. So if you want to change the font size of a text, you just select, first thing you have to select the text and go to the here font size option. You can change the font size with the help of this tool. Suppose I am using 20 font size for my this text. Similarly, again if I want to write the MS Word is very helpful for office. Okay, so यहाँ पर हमने simple एक statement लिखा. Now you can see when you select the entire line, you can change the font size here, right? You can change the font size here, right? These are the options where you can change the font size. No, see, suppose I want to write a paragraph. So I am not wasting my time to type here. I am just going to put some formula which help me to insert a predefined text in this page. Okay, so let's see, let's understand the formula. First I'm going to set the size, and equal to, this is formula is equal to RAND bracket, in the bracket, in the small bracket you have to put 10 comma 10.
so which help you to get a predefined text. Okay, there no need to type. There no need to type the entire set. Automatically it will come. Okay, let's see again this formula equal to. You don't put any space between the formula because it will not work. Now equal to rand function name, and in this function you have to pass 10 comma 10. Okay, when you enter it, automatically you will get different pages. Now here you see how many pages are there. 6 page comes here. Okay, now control Z. When you put 5 comma 5, you can put either 5 comma 5 or 10 comma 10. So 5 comma 5, then enter it. So you will get how many pages? 2 pages. Okay, 2 pages. Acquired according to a requirement, you can put your formula. Now this is my first paragraph, this is second paragraph. Okay, I just want only one page here. Okay, so I'm just going to remove the entire text from here. Now you can see here how to remove this text. See, first of all you have to select. So just, if you want to select the entire text with the keyboard, just press shift key and the down arrow. Through down arrow you can select entire thing, entire text, and then backspace. You will see, okay, the text will gone. Now here, how many paragraph are there? One paragraph 1, paragraph 2, and this is paragraph 3. Okay, and this is only one page. Automatically I got the text here. Now let's see the use of this font tab. Okay, now here this is the font family. Suppose if I want to set any font style, so I just select first thing. I am just selecting the things, and then here you have to choose any font style. You can choose any font style here. Suppose I choose this one. Okay, I want to make it bold also. This is making bold also. Okay, and here font size is 16. Let me 14 is all. Similarly, if I want another font, just select it, go to the style, and you can select any style here. Suppose I select Arial narrow. Okay, Arial narrow. So you can select. I don't want a bold, so just remove the bold. Just click on bold, it will automatically remove. If you want bold, just select the things, the text, and click on bold. Okay, I don't want. See. Similarly, if I want the same format here, you just select the any line, and click on format painter, and just select entire line here to select. You can see all format is come. ठीक है, जो फॉर्मेट यहाँ पर इस पैराग्राफ का है वही फॉर्मेट यहाँ पर भी हो गया है. नाउ अब इसके बाद सपोज आई वांट दिस पैराग्राफ मेक इटैलिक. इटैलिक मींस, ठीक है, थोड़ा सा जो टेक्स्ट थोड़ा सा हम चाहते हैं थोड़ा सा बेंड हो जाए राइट हैंड साइड, जैसे कि आई बेंड हुआ है ना. इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आई. इसका क्या शॉर्टकट की था? कंट्रोल प्लस बी. तो हमने क्या किया? कंट्रोल प्लस आई पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेंड हो गया है टेक्स्ट. अभी वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो सीधा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हुआ. ठीक है, तो इटैलिक फॉर्मेट चाहिए. सिमिलरली आपको यहाँ पर भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे लाइन को, जहां तक भी आप सिलेक्ट करें. ठीक है, शिफ्ट दबा के आप आगे भी इसको प्रेस कर सकते हैं ना, एंड देन क्लिक ऑन आई, और यू कैन चूज फॉर्मेट पेंटर एंड देन सेलेक्ट एंटायर थिंग. ठीक है, so this is a way to use italic. If you want underline in this paragraph, okay, so you just select the tab and click on underline. You will see the underline will come, okay, in this paragraph. Now this is the way. Suppose now why this green line comes here? The green line says is a grammatical mistake. So just click on it, right click on it, and just click on set. Now see, grammatical mistake has been gone.
ओके नाउ सिमिलरली अब हमें क्या देखना है नाउ italic is done. Now let's see underline is done. If you want another underline type, so you will choose any type of underline here, right? Or underline color also. You can choose any underline color also. Suppose if I want red, you will see the red color will come. Double line, see, and the color. Yes, click on it and put it color in red. You will see red color will come. Okay, similarly in the here if you want another underline, okay, so just go to the underline and zigzag line will come. If you want to set the color of this line underline, you can set the color with the help of this tool. So suppose green, blue, black, you can set anything. Suppose मैंने ये कलर लिया ऑरेंज ले लिए, ठीक है, green ले लेते हैं, green, you can see the green color will come. Okay, the entire thing will come. Now next one is, this is called strike through. Draw a line through the middle of the selected text. अगर एक टेक्स्ट के बीच में अगर आपको एक लाइन चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट इट. कैसे करेंगे इसका एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया और हमने यहाँ पे लिखा प्रयाग पब्लिक स्कूल, कैपिटल में PRAYAG, प्रयाग पब्लिक स्कूल. Okay, so I don't want underline, just select it and here click it here, it has been gone, right? And in the middle you want a line, so you just select it and then click strike through, so you will get the line between the text. Okay, so strike through, you understand. Now the next thing is come about the, दिस इज वन. अब देखो x के नीचे 2 लिखा हुआ है और x के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. ठीक है, ये हुआ सुपरस्क्रिप्ट. जो नीचे रहेगा इट्स बिलो द x इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट और अब द x इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट. ओके, तो हाउ टू पुट और हाउ टू यूज दिस, सो यू जस्ट क्लिक ऑन italic and underline to remove this and take it any number. Suppose if I want to write a plus b ka whole square, okay, so in the bracket a plus b bracket close and then whole square 2. Now just select the 2 here, only 2, and click on superscript. You can see you can make changes also. Suppose now a plus b ka whole square. Okay, now click on it and then enter. Suppose any H2O, capital H2O. Now just click on, select the 2 and click on the subscript. This H2SO4. अब SO4 लिखना है, SO4. Now select the 4 only, H2SO4 only, H2SO4 will come. Okay student, so this is about the ये superscript हो गया, ये subscript हो गया. Now the next thing is highlighter. Okay, so how to use highlight. Suppose you want, जैसे कि आप बुक में हाईलाइट करते हैं तो वैसे यहाँ पर भी आप हाईलाइट कर सकते हैं. कैसे करेंगे हाईलाइट? हाईलाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, you just move, select any color. First you have, sorry, before to highlight, let's go to the case. Okay, this is called a change case or case option. Now I'm going to remove the entire thing first, or select A, control A, clear format. ठीक है, अब क्लियर फॉर्मेट क्या करता है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की, इटैलिक किया, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, ठीक है, ये सब को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए, select the line text and clear format. The format is clear now. Okay, if you want to set the font size, हमने क्या किया, 12 कर लिया. ठीक है, और 14 करना चाहते हो आप 14 कर सकते हैं. ठीक है, ये 14 हो गया. Now here just remove the entire the previous one.
here you have to choose it. Now first of all, in the paragraph 1, so suppose I want to make a new paragraph here. Suppose I want to make this one. This is another paragraph. Okay, so here you can choose any paragraph, number of paragraph here, or from here you can choose paragraph from here. Now you can see how many paragraph come here. Now this paragraph having which alignment? Now here sentence case. Now what is sentence case? Sentence case, in a one sentence, the first letter of the first word will be uppercase. See here you can see now in the first sentence, okay, on the insert tab, the galleries include item data designed to coordinate with the overall look of your document. This is the first sentence. In this sentence, the first alphabet or first character of the text of a word will be uppercase. So O here is a uppercase. This is called a sentence case. So here if you put the text in a sentence case, just click on sentence. Already it is sentence case. If you want to make a uppercase, you just click on uppercase. You will see here the entire character, right, comes in uppercase. Similarly, here this is paragraph written in sentence case. If you want make it a lower case, you just click on it and make it here lower case. Sorry, don't judge. You just select the line first and then click on lowercase. Now here the entire sentence will comes in lowercase. Similarly, here in this, if you want to make this capitalize each word, see in this paragraph, each word having first character is uppercase. So most में M, control में C, offer में O, choice में A, choice में C, off में O. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स हर एक वर्ड सेंटेंस का में पहला कैरेक्टर क्या होगा, वो कैपिटल होगा. अब इसके बाद टॉगल केस, सी जस्ट क्लिक ऑन इट, select the tag and toggle case. Now the first character of a word may be, it will be lower case. So most में M, controls में C, offer में O, ठीक है, choice में C, it becomes in, ठीक है, toggle case. ये उल्टा है किसका, capitalize each word का उल्टा हो गया, is the opposite of capitalize each word. toggle case में क्या होगा, सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड होंगे उनका पहला कैरेक्टर क्या होगा, स्मॉल होगा टॉगल केस में. अब कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड होंगे उसमें पहला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है, तो हमने सेंटेंस केस देखा, लोअर केस देखा, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल. सेंटेंस केस में क्या था, सेंटेंस के देखिए हमारा ये सेंटेंस केस है, क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर देखो यहाँ तक हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो हमारा ये सेंटेंस यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है. You can use these galleries to insert table, header, footer, list, cover page and other document building blocks. ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं में पहला जो वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा. ये सेंटेंस केस है, ठीक है बेटा. तो इस तरह से हमने सेंटेंस केस देखा. चलिए वापस सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए से हम सेलेक्ट ऑल करते हैं एंड देन क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं. हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेटिंग अभी भी नहीं गई है, तो इसको फॉर्मेट करते हैं. इसको फॉर्मेट पे जाके इसको यहाँ से क्लियर फॉर्मेट या फिर सेंटेंस केस कर लेते हैं. सेंटेंस केस हो गया. सिमिलरली यहाँ पर भी जाके इसको फॉर्मेटिंग हो गई लेकिन सेंटेंस केस हमारा चेंज नहीं हुआ. इसको भी सेंटेंस केस करते हैं और इसको भी सेंटेंस केस करते हैं. सेंटेंस केस करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं वो है हमारा हाइलाइटर. अब हाइलाइटर का काम क्या है, अब देखिए हमारे पास सपोज हमको इसमें से कोई एक दो लाइन हाईलाइट करनी है, तो यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट कलर. ठीक है, जैसे हमने ये कलर चूज कर लिया.
अब इसको हाईलाइट कर, जैसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो पेन का आइकॉन आ गया। अब जिसको जहां जहां पर भी आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि मुझे हाईलाइट करना है यहाँ से लेकर यहाँ से मुझे हाईलाइट करना है, यहाँ तक मैंने कर दिया। ठीक, इसके बाद वापस से गए, यहाँ पे मुझे कहीं चाहिए हाइलाइटर, तो हमने यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये बात से यहाँ से मुझे इसको चाहिए था, जैसे कि आप बुक में करते हैं। अब हाईलाइट को रिमूव करना है तो यहाँ पे जाइए, यहाँ से नो कलर चाहिए। ठीक है, वापस से पेन आ जाएगा और इस कलम को यहाँ से हाईलाइट चला गया। ठीक है, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, रेड, येलो, वेलो, कुछ भी। ठीक है, तो हमने येलो किया, देखिए वापस से कलर आ गया तो येलो कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब हटाना है तो वापस जाकर नो कलर किया, यहाँ से वापस से जाइए, हटा दिया। क्लियर, इजी। तो इस तरह से हमने हाइलाइटर देखा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, फॉन्ट कलर आ गया, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो फॉन्ट हो। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं नो कलर। अब यहाँ से जो फॉन्ट है हम चूज कर लीजिए कि सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, कि आपको पूरा पैराग्राफ या कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ किस कलर में चाहिए। तो आपने सेलेक्ट किया, फॉन्ट में गए, आपने इसको रेड, ग्रीन कलर जो भी आप चाहते हैं वो कलर आप कर सकते हैं। रेड कर लिया इसको। ठीक है, इसको आपने, ठीक है, इसको आपने क्या किया, थोड़ा हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि आपको सारी चीजें आसानी से दिखें। तो थोड़ा सा हमने फॉन्ट का साइज चेंज किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रूलर लगा देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट ऊपर दिखे। चलिए, अब पहला पैराग्राफ चाहते हैं कलर इसका जो कलर हो रेड हो जाए, तो यहाँ पे जाते हैं, कलर चूज करते हैं, फॉन्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। दूसरा वाला पैराग्राफ चाहते हैं कोई और कलर हो। ठीक है, तो हम कोई और कलर भी हम कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे गए और यहाँ से ग्रीन कलर हमने ले लिया, ग्रीन हो गया। ठीक है, आप चाहते हैं ये ब्लू हो जाए, तो यहाँ से इसको आपने ब्लू कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपने इसको ब्लू कर लिया, ग्रीन कर लिया, जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट का कलर यहाँ से हो गया। ऊपर आपको मैंने बताया क्लियर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करिए, और जो भी फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, जो भी आपने फॉन्ट में चेंजेस किए हैं, फॉन्ट के कलर में, टेक्स्ट में, साइज में, हाइट में। ठीक है, ये सारी चीजें, अंडरलाइन, बैकग्राउंड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे हमारे क्या था, फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेट करना, किसी भी टेक्स्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये फॉन्ट टैग के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट थे वो हमने देखा। अब सबसे लास्ट में क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्लियर कर दिया। ठीक है बेटा, तो फिर आज के डेट में हमने क्या देखा, इसको ये वाला देखा। अब इसके बाद क्या हम देखने जा रहे हैं, हम पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। पैराग्राफ क्या करता है, अब देखिए हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमारे पास सबसे पहले अलाइनमेंट है। ये हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाई है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पहले पैराग्राफ को वापस जिस पोजीशन में थे हमारा पैराग्राफ उसी में लेके आते हैं। ठीक है, तो हमने ये पैराग्राफ वो इसी पोजीशन में लेके आ गए। जैसे पहला था यहाँ पे 2 और इसके बाद यहाँ से हमने तीसरा ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास 3 पैराग्राफ है। यहाँ पे एरर, सिंटैक्स एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, राइट क्लिक करके देखिए, राइट क्लिक ब्लॉक्स एंड डॉट व्हेन, तो ये भी सही हो गया। अब हमारे पास पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ पे एक पैराग्राफ हम इसको सब सोचते हैं, इसको और बड़ा कर लें, कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं नीचे, यहाँ पर पेस्ट कर लिया हमने। तो हमारे पास 4 पैराग्राफ हो गए, इस समय 4 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ में हमने सेलेक्ट किया और ये हमने क्या किया, इसको राइट कर दिया। तो अब देखो राइट के साइड से हमारा जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, जब एंटर करेंगे हम, तो हमारा जो कर्सर है, दिस इज कॉल्ड कर्सर, जो ब्लिंक कर रहा है हमको उसको कर्सर बोलते हैं। जो भी हम कुछ लिखेंगे यहाँ पर वो राइट से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंटर किया हमने, देखिए राइट से लिखना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा जो है राइट अलाइनमेंट है। हम इसको लेफ्ट करते हैं, यहाँ से लेफ्ट करते हैं। अब एंटर के बाद जब भी हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे तो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। अब इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट अलाइनमेंट है वो है सेंटर। इसका मतलब अगर हमने किसी पैराग्राफ को या अपने से अलाइनमेंट को सेंटर कर दिया तो जो भी हम स्टार्ट करेंगे टाइप करना वो सेंटर से स्टार्ट होगा। देखिए
ठीक है, वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा लेफ्ट राइट और सेंटर लाइन, ये आप इसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका भी। तो आप गए यहाँ से, ठीक है, और इसको लेफ्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है, लेफ्ट में एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है बेटा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है ना, लेकिन राइट पे नहीं आ रही है। तो ये राइट आप चाहते हैं कि जो भी स्पेस इस मार्जिन से में जो स्पेस बच रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, फिल हो जाए, है ना, जो भी स्पेस यहाँ पे है फिल हो जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्टिफाई। जब जस्टिफाई कर देंगे तो देखिएगा इधर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इधर भी एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या, इस पूरे टेक्स्ट को क्या किया, फिट कर दिया है, इस पूरे टेक्स्ट को इस लाइन में पूरा फिट कर दिया गया है जस्टिफाई से। तो इसका शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले लेफ्ट का है कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए है कंट्रोल प्लस राइट, लेफ्ट का एल, राइट का आर। अब क्योंकि सेंटर के लिए सी नहीं हो, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी ऑलरेडी कॉपी के लिए बन चुका है, इसलिए सेंटर के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस ई है, और जस्टिफाई के लिए जे है, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, ये सबका शॉर्टकट तरीका है। अब बेटा नेक्स्ट हमारा चीज क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम कैसे लाइन स्पेसिंग का मतलब एक पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइन का स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, 1.15, ठीक है, पिक्सल का यहाँ पे साइज दिया है। तो हमने यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, 1.5 का कर सकते हैं। लोगों देखो लाइन स्पेस बढ़ गई। इसका मतलब कि जब भी हम एंटर करेंगे यहाँ से, तो जो हमारा टेक्स्ट लिखने को होगा उसके बीच में क्या होगा, जो लाइन स्पेस होगा 1.5 का होगा। आप चाहते हैं कम हो, इसके बाद जो लाइन उसका स्पेस कम हो, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप कुछ कम कर सकते हैं, 1.0 कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर किया, अब देखिए ये लाइन आ गई। अब देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में स्पेस, ठीक है, कितना हो गया, बीच में कितना है, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना स्पेस कम हो गया। तो आप लाइन के बीच में स्पेस भी कम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हमने 1.5 किया, तो देखिए ऊपर हमारा पैराग्राफ का जो लाइन है कम हो गया है। ठीक है, तो लाइन स्पेस हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे इसको में और भी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, सबको आपको सब चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया इस, यहाँ से आप लाइन स्पेस और ऐड स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पेस ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ से पहले। कोई ये मान लो यहाँ पर हमारा लाइन है, ठीक है, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, कंट्रोल ए, इसको पहले रिमूव करते हैं यहाँ से। बहुत सारी चीजें इसमें है बेटा, लेकिन अभी हाँ ये ऐसा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करके जो भी हम बेसिक टूल्स है पहले वो देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, लाइन स्पेस के बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे थीम कलर का, यानी कि एक पैराग्राफ के पीछे का क्या कलर होना चाहिए वो आप सेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए पैराग्राफ के पीछे का कलर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं थीम कलर। यहाँ से भी जा सकते हैं आप, और यहाँ से भी कोई चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग थीम कलर आप पैराग्राफ का ले सकते हैं। ठीक है, पेज कलर इज डिफरेंट थिंग एंड थीम कलर इज डिफरेंट। ठीक है, आपके टेक्स्ट के पीछे कलर क्या होगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने 4 कलर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैराग्राफ का थीम चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोई भी थीम आप ले सकते हैं। तो हमने 4 थीम कलर ऐड कर दिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये देखा अभी हमने। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है, अभी हमारा आता है बॉर्डर्स। ठीक है, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, यहाँ बहुत सारे बॉर्डर्स ऑप्शन अप्लाई किए गए हैं। नाउ यू कैन सी। तो इसको कैसे देखेंगे, सपोज हमको आउटलाइन चाहिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए सारे के सारे जो टेक्स्ट हमारे हैं वो एक बॉर्डर के अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये पेज बॉर्डर नहीं है, ये आपका जो आउटलाइन है ये टेक्स्ट का है। ठीक है, टेक्स्ट का है ये। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या है, पैराग्राफ है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है पैराग्राफ के हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बुलेट एंड नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो बेटा ये प्रैक्टिकल का पूरा चैप्टर्स है, इसको प्रैक्टिकली इसको समझना है, ताकि आप
इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए, और जब ये क्वेश्चन रेज किया जाए किसी टॉपिक के ऊपर तो आप इसको आसानी से इसका आंसर दे सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। ओके, सो वी विल in the next class we will learn the bullet and numbering in the paragraph as well as the insert type also. ठीक है, तो and one more thing beta, you have to cover the question answer of this chapter. Okay beta, so thank you for watching this video. I hope you learned